नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज गुरुवार 25 जनवरी को बीदर में नेशनल वोटर्स डे कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में लेंगे शपथ। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर बीजेपी में लौट आए। पिछले साल कांग्रेस में हुए थे शामिल। तेलंगाना में टाउन प्लानिंग अधिकारी के परिसर में तलाशी, 40 लाख नकद के साथ 100 करोड़ की संपत्ति बरामद। भारत को विकसित बनाने में दे योगदान, फर्स्ट टाइम वोटरों से पीएम मोदी की अपील। कहा, आपका वोट देश की दिशा तय करेगा, तभी तो हम मोदी को चुनते हैं। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी ने लॉन्च किया अपना थीम सॉन्ग। अब समाचार विस्तार से। आज नेशनल वोटर डे है। गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आज गुरुवार 25 जनवरी को बीदर के डॉक्टर चन्नबसवार पट्टादेवरू रंग मंदिर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जिलाडलित और स्वीप समिति बीदर की ओर से नेशनल वोटर्स डे कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में बीदर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल, बीदर डीसी गोविंद रेड्डी के अलावा सीएस गिरीश दिलीप बडोले, असिस्टेंट डीसी शिव कुमार शीलवंत, तहसीलदार दिलशाद महत उपस्थित थे। इनके अलावा भारी संख्या में सरकारी अधिकारी और विभिन्न स्कूलों के छात्र और छात्राएं उपस्थित रहे। डीसी बीदर गोविंद रेड्डी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और बीदर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिन युवाओं के नए वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं, उनमें वह कार्ड वितरित किए गए और कुछ अधिकारियों को वोटरों के लिए बेहतर कार्य करने पर पुरस्कार भी दिए गए। इस अवसर पर बीदर के एसपी चन्नबसवन्ना एसएल, डीसी गोविंद रेड्डी, सीएस गिरीश दिलीप बडोले ने संबोधित करते हुए वोट और वोटर आईडी के महत्व के बारे में बताया। केपी न्यूज कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ। ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಚಲಾಯಿಸುವವರಿದ್ದೀರಿ ಈ ವರ್ಷ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಂತಹ ದೇಶ ಯಾವುದಿದೆ? ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವುದು ಇವಾಗ? ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿ ದೇಶ ಆಗಿ ಏನಂದರೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾವುದು? ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ। 2011ರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸುಡಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದೇಶವಾಗಿ ಉದಯ ಆಗಿದೆ। ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನಾವು 2011ರಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದು ಈಗ 14ನೇ ಮತದಾರ ದಿನಾಚರಣೆ। ನಾವು ಈ ಮತದಾರ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ದ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೋಟಿಂಗ್, ಐ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಶೂರ್। ಈ ಥೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತದಾರ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ವೋಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ। ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವೀಪ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಮಕ್ಕಳ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಏನು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಕ್ಕು, ಈ ಹಕ್ಕು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಚಲಾಯಿಸತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ಅದು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು। ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 75% ನಾವು ಗುರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ। ನಾವು ಸ್ವೀಪ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಹಕಾರನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ NVD ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಡೇ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಜನವರಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಯಿತು। 1950ರಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು। ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ
ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೆ 1950 ನಂಬರ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತು ನೀವು ಫೋನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಏನಂತೇಳಿ ಎಪಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲೋ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲೋ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ. 1950 ಜನವರಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹುಟ್ಕೊಂತು, ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾವ ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಲ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಆದ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 17 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 18 ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮತದಾರರು ಆಗ್ತೀರಿ. ಇದು 2ನೇ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು 3ನೇದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 193 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದಾವ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಮತದಾನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಿರೀಶ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ 71% ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸು ನೀವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ವಯಸ್ಸು ಸಣ್ಣದಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಕೇಳೋಕೆ ನೈತಿಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾರೆ ನೀವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗಿನ ಧ್ವನಿ ಕುಸಿತಗೊಳ್ತೈತೆ ಅನ್ನಂತಾನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಬರಬೇಕು, ನಿಮಗೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ. ವೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ आज गुरुवार 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के अवसर पर बीदर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने डीसी कार्यालय से डॉक्टर चन्नबसवन्ना पट्टादेवरी रंग मंदिर तक रैली निकाला। असिस्टेंट डीसी शिव कुमार शीलवंत ने इस रैली को चालन दिया। इन छात्रों ने रंग मंदिर पहुंचकर यहां कार्यक्रम में शामिल हो गए। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बिवराले को बुधवार को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कल उनके शपथ लेने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई सहित न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी। एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने इस महीने की शुरुआत में उनके नाम की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने कहा था कि इस तथ्य पर विचार किया गया है कि वह उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक है। वह उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति से आने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है। उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाले तीसरे न्यायाधीश होंगे। अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवाई और न्यायमूर्ति T रवि कुमार है। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर गुरुवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पूर्व सीएम BS येदियुरप्पा और राज्य बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र की मौजूदगी में बीजेपी में फिर से शामिल हो गए। लिंगायत नेता ने पहले फैसले के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। शेट्टर ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले टिकट नहीं मिलने पर भाजपा छोड़ दी थी और पिछले साल अप्रैल में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB के अधिकारियों ने तेलंगाना में एक टाउन प्लानिंग अधिकारी के परिसर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान 40 लाख नकद और 100 करोड़ रुपए की संपत्ति और अन्य कीमती सामान भी मिला। ACB के सूत्रों ने कहा, टाउन प्लानिंग अधिकारी बालकृष्णा के परिसर में कुल 14 टीमों ने छापेमारी की। उन्होंने आगे बताया कि तलाशी गुरुवार को भी जारी रहेगी। तलाशी के दौरान प्लानिंग अधिकारी के परिजन ACB टीमों के साथ सहयोग करते हुए नहीं दिखे। ACB ने नकद के साथ सोना, फ्लैट और बैंक जमा सहित 100 करोड़ की संपत्ति का पता लगाने का दावा किया है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में स्थित हजरत सैयद अजीज उद्दीन कादरी का 435वां उर्फ शरीफ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मोहल्ला गढ़ी स्ट्रीट खानका खादिया से संदल जुलूस निकाला गया। बड़े बाजार से होते हुए यह संदल दरगाह को पहुंचा। दरगाह के सज्जादा नशीन सैयद शाह रिजवान कादरी ने संदल की रस्म पूरी की। इसके बाद महफिल समा आयोजित किया गया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो नमो मतदाता सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नए मतदाताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने फर्स्ट टाइम युवा वोटरों से कहा कि भारत को विकसित बनाने में योगदान दें। पीएम मोदी ने युवा वोटरों से कहा, आज जब देश 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। जिस तरह से 1947 से 25 साल पहले भारत के नौजवानों पर देश को स्वतंत्र कराने का दारोमदार था, उसी तरह 2047 तक यानी 25 सालों में आप पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने कहा, ये काल चक्र 2 वजहों से बहुत अहम है। पहला, आप सभी ऐसे समय में वोटर बने हैं जब भारत का अमृतकाल शुरू हुआ है। दूसरा, कल 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी, दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्टोव में कोयला डालकर चाय पकाने के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शेयर करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत असम में है। वह अपने एक बयान की वजह से काफी ट्रोल हो गए और वजह बनी कोयला, स्टोव और चाय। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने और राहुल गांधी के बीच पिछले कुछ दिनों से नोकझोंक का दौर चल रहा है। इस बीच हिमंत ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो ट्वीट करते हुए उन्हें ट्रोल कर डाला। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। विजन 2024 के लिए भाजपा ने कैंपेन थीम का लॉन्च कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 2024 चुनाव के लिए भाजपा के आधिकारिक अभियान की शुरुआत की, जिसका शीर्षक है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। इस थीम सॉन्ग में रामलला का जिक्र भी है। भाजपा के इस थीम सॉन्ग को फर्स्ट टाइम वोटर्स के कॉन्क्लेव यानी नव मतदाता सम्मेलन में रिलीज किया गया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे पीएम मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं को हकीकत में बदला। भाजपा का दृढ़ विश्वास है कि यह कैंपेन थीम केवल कुछ लोगों द्वारा अनुभव की गई भावना ही नहीं, बल्कि जनता के बीच गूंजता है। जेपी नड्डा ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से खुद को लोगों की भावनाओं के अनुरूप बनाने और इस महत्वपूर्ण अभियान के बारे में देश के हर कोने में जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। यह वैज्ञानिक पृथ्वी के लिए एक नया चांद बनाना चाहते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए के लेटेस्ट वीडियो से यह सवाल पैदा हुआ है। ईएसए ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें पृथ्वी पर चंद्रमा की सतह को फिर से बनाने की योजना का खुलासा किया गया। बताया गया कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए यूके और जर्मनी के वैज्ञानिकों के ग्रुप ने ग्रीनलैंड की एक माइन के साथ सहयोग किया है। माइन एक ऐसी रॉक चट्टान उपलब्ध कराएगी जिसमें चांद की सतह पर मिलने वाले मटेरियल जैसे गुण हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा जैसी सतह बनाने के लिए एनोर्थोसाइट का इस्तेमाल होगा। यह हल्की रंग की आग्नेय चट्टान है। ग्रीनलैंड की माइन ही इस चट्टान को पहुंचाएगी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। उत्तर भारत में आज की सुबह भले ही ठंडी रही हो, लेकिन देश की सियासत का पारा लगातार हाई बना हुआ है। खासकर बिहार से एक के बाद एक लगातार सियासी डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच नुरा कुश्ती अब तलाक की नौबत तक पहुंच गई है। कुछ ऐसे ही माहौल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं। हालांकि कांग्रेस की न्याय यात्रा के शेड्यूल की बात करें तो पहले से 27 और 28 जनवरी यानी शनिवार और रविवार को पहले से छुट्टी रखी गई थी, लेकिन गुरुवार को ही राहुल गांधी के अचानक इस तरह लौट आने पर अब कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कड़ा एक्शन लेते हुए उस एसडीएम को हटा दिया है जिसने महिला से अपने जूते के फीते बंधवाए थे। मामला सामने आने के बाद सीएम मोहन यादव ने मामले का संज्ञान लिया और एसडीएम को हटाने का आदेश दे दिया। बता दें कि सीएम ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी गई है। सिंगरौली के एसडीएम को उनके पद से हटा दिया गया है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सीएम मध्य प्रदेश के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कहा गया कि सिंगरौली जिले के चितरंगी में एसडीएम द्वारा एक महिला से उनके जूते के फीते बंधवाने का मामला सामने आया है, जो अत्यंत निंदनीय है। इस घटना को लेकर एसडीएम को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। हमारी सरकार में नारी सम्मान सर्वोपरि है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज गुरुवार 25 जनवरी को बीदर में नेशनल वोटर्स डे कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में लेंगे शपथ। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर बीजेपी में लौट आए। पिछले साल कांग्रेस में हुए थे शामिल। तेलंगाना में टाउन प्लानिंग अधिकारी के परिसर में तलाशी, 40 लाख नकद के साथ 100 करोड़ की संपत्ति बरामद। भारत को विकसित बनाने में दे योगदान, फर्स्ट टाइम वोटरों से पीएम मोदी की अपील। कहा, आपका वोट देश की दिशा तय करेगा, तभी तो हम मोदी को चुनते हैं। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी ने लॉन्च किया अपना थीम सॉन्ग। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।